So the first part of this question is, what is the distance traversed by the particle between the time 0 to 10 seconds? Means 0 to 10 seconds, how much is the distance traveled? So on the y-axis, we have the speed, and on the x-axis, we have time. So what's this area tells us? What will be the units of the area? That is x-axis multiply units on x-axis multiply the units on y-axis. So that will be meter. So meter is the units of distance, right? So if you find the area from 0 to 10 seconds, then it will tell me the distance traversed in 0 to 10 seconds. So a part, yes, good. So the area is half into what is base here, 10 seconds, into height. Height is 12 meter per second. And you get the answer as, so power 1 minus 1, 0, s raised by 0 is 1. It is 2 times 1 and 2 times 5. So that's 60 meters. That is the first part of the question. Now, let us look at the second part. How much will be the distance traversed by the particle between the time t equals to 2 seconds and 6 seconds. So this area I am supposed to find. Now you can see that this area, you can divide this area into two parts. This is 2 seconds, this is 6 seconds. So two parts, this is part A and this is part B. So part A is a trapezium. So area of trapezium, what is area of trapezium? Yes. Okay. So these are the two parallel sides AB, and this is the distance between them. We also call it the height of the trapezium. So half into sum of parallel sides into height, isn't it? See, it's so easy. You can remember it like this. Like you can divide this trapezium in two parts. Two triangles you have, and this is your height h. And so the height of this triangle will also be h. So both triangles have the height h. So this area, what is the triangle? This is base, this is your A. So you can assume A as base here, and you can assume B as base for this. So half into base into height plus, now this part, this area, half into, here the base is A, you can assume, and so you have to take the side and the corresponding altitude. So here the side is A and the corresponding altitude is h. From the opposite vertex, draw a perpendicular. So that is h. So now you can take 1 by 2 h common, and you will get A plus B. So that's how we have derived the formula of area of trapezium. So you can just keep in mind, while writing, you are not going to be confused that, okay, height is same and the corresponding height here is A and B. So half of h is common and we will get A plus B. So that is the area of trapezium.
So again, this is 2 to 6. So what is the distance traveled? So this is trapezium A, this is trapezium B. So just wait a minute.
So students, we are doing this question, and second part we have to find the distance traversed between time t is equals to 2 seconds and time t is equals to 6 seconds. And I told you that we can also consider this as two trapeziums. This trapezium A and this is trapezium B. So this total area is the area of trapezium A plus area of trapezium B. And that will be equals to now the distance between the parallel sides here is 5 minus 2, that is 3, and here the distance between the parallel sides 1. Yes, good. Now what this if we just draw this separately, now this side is 3, this side is 3 seconds, this side is 12 meter per second. What about this side? So this side, let us find out what is the speed over here. For that we have to find the acceleration, students, because in all the three equations of motion we need acceleration. So if we want to find here initial speed as 0, what is the speed over here at 2 seconds, at the end of 2 seconds? So we need acceleration, and the slope of this graph gives you the acceleration. So the slope of this graph, that is meter per second. So how much is it? So the change in y-axis is and this is the change in x-axis. So this slope here and this slope is the same slope. So let us find the slope, this, because it's a linear graph, so same slope. So change in y-axis is 12 meter per second. For change in x-axis is 0 to 5 seconds. So we are finding this whole slope. So this is 5, this is 12. So 12 meter per second upon 5 seconds. So this I get 12 by 5 meter per second square. So means velocity is changing in 1 second. So that's your acceleration, units of acceleration, that's your acceleration. And we know that v is equals to u plus at. And u is 0 here, so a 12 by 5. So in 1 second the velocity will be 12 meter per second. In 2 seconds it will be 12 multiplied 2, right? So that is 24 upon 5. So this side is 24 upon 5. So this speed, yes, at the end of 2 seconds. So this is 24 meter per second. Now what will be the area? So half into sum of parallel sides, 24 by 5 plus 12. Okay. 24 by 5 plus 12 into distance, 3 seconds. So that will be your area. And area will give you the distance traversed, isn't it? Because its units are meter per second. And its unit is 3 seconds, so second, and you get the whole units as meter. So half into, now we have 5 over here. So adding, so multiply, divide this 12 by 5. So 24 plus 50, 12 multiply 5, that is 60. So 24 plus 60 is 84. Or you can also do one thing, you can divide both these by 2. So this 2 will also cancel out. So this will be 12 and this will be 6. So, so 12 plus 6 into 5. So 12 plus 6, 5 the 30. So this 2 is gone. Divided by 5 into 3. And this will comes out to be 42 by 42 into 3 by 5.
and 42 into 3 will be 126 upon 5, and this is 25.2 meters. So 25.2 meters is this distance. So this distance is your 25.2 meters. Okay. Now what about this was your A. What about the B? That's your B, students. Now we know this side is 12 meter per second. So here the velocity is 12 meter per second. This 5 seconds, 6 seconds, so difference is 1 second. What about this, this side? This is the velocity after 6 seconds. You know the velocity after 10 seconds. See, here the slope is positive and here the slope is same, because it's the changes. So if you find the slope here, you will see that speed is decreasing, time is increasing, so the slope will be negative. If you find a slope, so of course it will be minus 12.5, isn't it? Yes, because change in y-axis, yes, change in y-axis upon change in x-axis. So change in y-axis, what's the final? Final is 0. Final speed is 0 minus initial was 12. So change is, you can see. And what about time? Time is final 10 minus 5. So that's minus 12 by 5 meter per second. So this is plus 12.5 meter per second square. This is minus 12.5, 12 by 5 meter per second square. So this is meter per second square. So that is your acceleration. So acceleration here in this case is minus 12. So in 1 second, speed decreases this much. So speed was 12 and speed was decreased by this vector. So you can find the velocity here. So v is equals to u plus at, and u is your 12 here. So 12 plus acceleration is minus 12 by 5, and time is just 1 second, isn't it? How much is the time? 1 second. 1 second. So yes, so you can multiply this with 5. So what will you get? 60 by 5 minus 12 by 5. So 60 minus 12 by 5, and you get 48 by 5. So this is the velocity, meter per second. So 48 by 5. So this is 48 by 5 meter per second, isn't it? So what will be the area? What is this area? Area will be equal to half into sum of opposite side, 12 plus 48.5, 48 upon 5 into 1 second. So again you can like 12, so this will be, divide both sides, means divide these two terms by 6. So 6 8 the 48. Now 6 plus 8 by 5. So you need to multiply this 6 by 5. So this is 38 by 5, isn't it? Is it okay, students, or is there some problem? Yes, sir. So please explain the second part again. Second part, okay. See, the slope is minus 12.5. So that's our acceleration. So v is equals to u plus at. So v is our 12
u is our 12 meter per second, acceleration is this, and the time taken from here to here is 1 second. So 1 second, and so 12 minus 12 by 5. So that will be your velocity. So 12 minus 12 by 5 will be, because this is 60 by 5, so 60 by 5 minus 12 by 5 will be 48.5 meter per second. So the velocity here is 40, means here it was 12 meter per second, and it is reducing with what? With minus 2.4 meter per second in 1 second. So 12 minus 2.4 will be 9.6 meter per second. So this is 9.6 meter per second. You can also write it like this. And so this side is 12 and this side is 48 by 5. So that will be see half से we will be dividing, students. So that's what we are doing here. Here not 8. What will be here when we will be dividing it with 2? 6, and here will be 24, isn't it? Yes? Yes. So that was the mistake actually we were searching for. Now this is not 8, this is 24. So 30 plus 24 divided by 5. Okay. Now it's okay, students. So 54 by 5, and that's equals to 10.8 meters. So this area, the first area was how much? 25 by 2, and the second area is 10.8. So what is the total distance traversed from 2 to 6? This is the distance traversed from 2 to 5 seconds. And this is the distance traversed in the 6th second. Okay. 6th second. 36.3. Yes, very good. So the total distance from 2 to 6 seconds is 25.2 plus 10.8. So that is 36 meters. Okay. Excuse me, sir. Yes. Sir, we have to multiply with 15 as well. You haven't. We have to multiply it with 15. What? 1 second. See the time? Okay, sir. Okay. Yes. See, this is not 15. This is 1 second, because here it was 5 seconds, here it was 6 seconds. So 6 seconds minus 5 seconds is 1 second. So that's not 15, that is 1 second. Okay. And here the units were meter per second and meter per second. So second cancels out. We get meters as unit. So this is 10.8 meter. Got this question, students? Yes, sir. So this is a case study actually. You do case studies, there will be case studies in your exams. So this is sort of case study. Would you like to further want to find the average speed also? Yes. Do you want to extend this case study? We can extend this case study. Like now, students, you have to find the, so we have done this part. Now, what about the average speed in this part? So average speed, you know the formula. Average speed is equals to total distance. Yes, there's only one formula, total distance upon total time. So students, what is the total distance? From 0 to 10 we have calculated? 60 meter. Very good.
So 60 meters divided by how much the time taken? 10 seconds. So what is the 10 average seconds. speed? 6 meter per second. So that is the average speed for the first part. Now what is the average speed for the second part? Part B, average speed. Means that is time from 2 to 6 seconds. What is the average speed, students? Again the same formula. Total distance upon total time, right? What is total distance from 2 to 6 seconds? We have just calculated it. 36 meters. 36.3. No. See, this from 0 to 5, it was how much? 25.2. 25.2. And then in this part it was 10.8. So the total was 36, right? So 36 meters divided by how much the time here? 4 4 seconds. seconds. So 4 8 the 32. So 8.5 meter per second is the average speed in the second case. Nine for the 36 students. Yes. 9 for the 36. Now 4 times 1, 4 9 the 36, not 8 5. Okay, done. Yes. Yes, sir. So students, that was case study. You can do this question once more. If you do it once more, you will be able to understand it better. Okay. Now let us do some other questions from your book. Like do you have any queries, like you have solved some questions from your book and you find any difficulties? Now let us do question number 6 from your NTSC. We have done all the questions from 1 to 5. Now we are doing question number 6 from your NTSC book. So we have 3 particles A, B and C are thrown from the top of the building. So we have this as the building, and from the top of it we have thrown 3 particles A, B and C. This particle A is thrown upwards. Okay. The particle B is thrown downwards. So from here, this platform downward, this is this particle B, and C is thrown horizontally. C is thrown horizontally. So horizontally, how will it go down? It will follow the path of parabola. So you have this was the direction in which your particle C was thrown, but it will go in this direction. B will come down here on the ground and C will okay, students, this is very one of the very important questions. This is also a sort of, you can use this question to learn so many things. Okay, so if you throw it horizontally, this particle C, beta, it will come down and this is the shape of parabola. Okay,
Now the question is, they will hit the ground with the speed, so this A will go up, and then of course it will, you are actually, you can assume you have thrown it over here, this A, and then it will come down. Okay, so it will hit the ground with velocity VA, this B will hit the ground with velocity VB, and this C will hit the ground velocity VC. Okay, so can you calculate these velocities? VA, what is VA, what is VB, and what is VC? So this is also a sort of case study, and this also a question, means which of these speeds will be same or equal? Can you tell me without calculating, will any of the two speeds will be equal? Means VA or VB or VC, any of these two speeds, do you think they will be equal? Yes. A and B. A and B, okay. A and B will have equal speed, okay. What about other students? What do you think? Sir, hope so A and C. Sir, hope A and C, so A okay. and C. Okay, okay, fine, fine. Yes. What, okay, if let us find what will be VA. Okay. What will be VA? So VA will be, let us consider this as height of the tower is H. How much is the height of tower? H? Yes. This is the height of the tower. Is H. So this ball has gone up, and then it will come down. So they all A, B, C are thrown with the same velocity, and let that velocity be same. So it's U, this is also U, and this also U. So A, B, C all are thrown with the same velocity. Okay, the difference is that in case of A and B, it is pure vertical velocity, whereas in case of C, it's pure horizontal velocity. Students, that is the difference. In case of A, it is pure vertical. In case of B also it is pure vertical, but in case of C, vertical velocity is actually 0. There is only horizontal velocity. See, you have thrown the ball A upward. Yes. So the velocity is along y-axis. Is there any velocity along x-axis? No. So the component along y-axis is there, and component of velocity along x-axis is 0. Now, in case B, you have thrown the ball vertically downwards. Is there any horizontal velocity? In this case, there is only vertical velocity. Horizontal velocity here in this case is also 0. But in case ball C, you have thrown horizontally, right? So here, is there any vertical velocity in the beginning? Because you have thrown it with horizontal velocity, right? And vertical velocity in this case was 0, because you have thrown it in this direction now. So vertical is 0. Here when you throw the ball upward or downward, then horizontal component is 0. But when you throw the ball in the horizontal direction, vertical component will be 0. Have you understood this concept, students?
इसका क्या मीनिंग है? जब आप बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो बॉल कम्स डाउन, तो उसमें जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो क्या होता है? वर्टिकल डिस्टेंस, जिसको आप बोलते हैं हाइट। क्या इन क्वेश्चंस में आप कभी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखते हैं कभी, कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ? कभी निकाला है? कभी नहीं निकाला। नो सर। जब आप बॉल को नीचे फेंकते हैं तो आप सिर्फ ये देखते हैं ना कितनी हाइट उसने ट्रेवल की। कभी आपने एक्स निकाला है कि उसने एक्स कितना ट्रेवल किया इस डायरेक्शन में? क्या कभी निकाला? ये होता ही नहीं है, क्यों? बिकॉज इट इज जीरो। आई बात समझ में? यस सर। यस सर। और जब आप किसी बॉल को ऐसे थ्रो करते हैं इन दिस डायरेक्शन, एक्स आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, तो क्या उस समय उसकी कोई वर्टिकल वेलोसिटी है उस समय? नो, बिकॉज यू आर थ्रोइंग इट हॉरिजॉन्टली। यहां पर वर्टिकल वेलोसिटी थी, आप ऊपर फेंक रहे थे, आप नीचे फेंक रहे थे, तो भी वर्टिकल वेलोसिटी है। इसको आप पॉजिटिव मान लो, इसको आप नेगेटिव मान लो, बट दिस तो। लेकिन इस केस में क्या होगा? जब आप बॉल को हॉरिजॉन्टली, यू आर थ्रोइंग हॉरिजॉन्टली, तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। ओके। यस सर। Yes, sir. कोई बात नहीं, फर्स्ट टाइम हम ये कंसेप्ट समझ रहे हैं, फर्स्ट टाइम स्टूडेंट्स, इट टेक्स टाइम, ओके, सो डजंट मैटर। नाउ Sir, please tell this concept one more time. ओके, सी जब आप वर्टिकली स्टूडेंट्स आप एक बात बताओ मुझे, रिवर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ओके, Yes, sir. और एक आदमी है वो इस रिवर को क्रॉस करना चाहता है, ठीक है? Okay, sir. उसने ऐसे स्ट्रोक लगाने शुरू कर दिए सामने की तरफ, तो वो ए पॉइंट पे रिवर से बाहर निकलेगा या सी पॉइंट पे रिवर से बाहर निकलेगा? ये बता दो मुझे। C. सी पॉइंट। तो ये थी आपकी हॉरिजॉन्टल, मतलब इस डायरेक्शन को, दिस वाज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रिवर, दिस वाज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। तो जब दो वेलोसिटी होती हैं तो उसका रिजल्ट कहाँ निकलता है? तो उन दो वेलोसिटी से हम रेक्टेंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेक्टेंगल। और वो जो रेक्टेंगल का डायगोनल होता है, that is the sum of these two velocities, because velocities are vectors। तो स्केलर्स तो हम सीधा ऐड कर देते हैं, जैसे हमें स्केलर्स को ऐड करना है, भाई ये 2 kg मास है और ये 3 kg मास है, तो टोटल मास कितना हो गया? 5 kg। 5 kg. लेकिन वेक्टर्स के केस में ऐसा नहीं होता। वेक्टर्स के केस में अगर ये रिवर की वेलोसिटी 3 है और जो मैन है उसकी वेलोसिटी सपोज 4 मीटर पर सेकंड है, समझ रहे हैं? तो जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में वो कितनी होगी? तो वो क्या बन गया आपका यहाँ पर? हाइपोटेन्यूज। क्या बन गया? Hypotenuse. तो हाइपोटेन्यूज अगर साइड एक 3 है दूसरी 4 है, तो पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको पता है ये 5 बनेगा। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो आपने यहाँ पर Vx, हम ये वेक्टर साइन बनाते हैं, ये एरो बना देते हैं उसके ऊपर जो V लिखकर, और ये Vx प्लस Vy, तो दोनों को ऐड किया, ये था Vx आपका 3 मीटर पर सेकंड और ये था Vy 4 मीटर पर सेकंड, जो कि मैन की स्पीड थी रिवर की। तो आपका आंसर आया 3 + 4 is 5। So 5 meter per second is the sum. So it depends on the angle, कि यहाँ कौन सा एंगल था। तो अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में होते, रिवर भी इसी डायरेक्शन में है और मैन भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है स्टूडेंट्स, तो इनकी स्पीड क्या आ जाती? ऐड। आंसर आता 7 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर ये सेम डायरेक्शन में नहीं है, यहाँ ये 90 डिग्री एंगल है इन दोनों बीच में। हाउ मच द एंगल? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री, तो आप सोचो
3 + 4 यहाँ पर आप ऐड कर रहे हो 3 + 4 kg, तो आपको मिला 7 kg, लेकिन यहाँ 3 + 4 आपने वेलोसिटी ऐड की तो आपको रिजल्टेंट कितना मिला 5। और ये मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन ये हो गया अलोंग द डायगोनल। तो वेक्टर्स को ऐसे ऐड किया जाता है। तो इसीलिए वेलोसिटीज जो होती हैं वो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में हो सकती हैं। तो थोड़ा सा ये आपके लिए नया कंसेप्ट है। ओके ओके सर। चलिए दोबारा समझते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट अगेन। ये आपने बॉल फेंकी ऊपर, तो कौन सी वेलोसिटी है इसकी? सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी। आपने बॉल नीचे फेंकी तो सिर्फ वेलोसिटी किसकी है? इसकी वर्टिकल। आपने बॉल हॉरिजॉन्टली फेंकी तो कौन सी वेलोसिटी है? vx। हॉरिजॉन्टल। vy कितनी है y डायरेक्शन में? 0। तो vy इज इक्वल टू 0। इसमें vx कितनी थी? अगर आप vx 0 थी इस केस में। तो यहां पे बॉल आप कैसे फेंक रहे हैं? बॉल थ्रोन वर्टिकली, इस केस में वर्टिकली अप, इस केस में वर्टिकली डाउन, लेकिन इसमें कैसे? बॉल थ्रोन हॉरिजॉन्टली। बात आ गई समझ में? यस सर। तो जब आप यहां पर भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी इस केस में? 0, क्योंकि आप बॉल वर्टिकली यू आर थ्रोन अप और यू आर थ्रोन डाउन। सो इन बोथ द केसेस velocity along the x-axis will be or velocity. Is this clear students? यस सर। तो वर्टिकली के केस में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और हॉरिजॉन्टल बॉल थ्रोन हॉरिजॉन्टली, तो इस केस में वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। ओके ओके सर। यस सर। बस इतनी सी बात है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये आपका टावर है, ठीक है? अभी हम अपने असली क्वेश्चन पे तो जाएंगे, लेकिन उससे पहले यहां से एक बॉल मैंने सिंपली ड्रॉप कर दी और दूसरी जो बॉल है वो मैंने हॉरिजॉन्टली फेंक दी, ठीक है? ये मैंने ड्रॉप की है। इसमें भी आपका फर्स्ट केस में भी, इस केस में भी आपकी हॉरिजॉन्टल जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या है? 0। हॉरिजॉन्टल भी 0 है इस केस में और वर्टिकल भी 0। क्यों? क्योंकि बॉल दोनों की दोनों रेस्ट में थी, ठीक है? तो इसको मैंने सीधा ऐसे ड्रॉप कर दिया। एक बार दोबारा देखो क्या कह रहा हूं। लेट अस डू दिस केस वन बाय वन। इस बॉल को मैंने क्या किया? ड्रॉप कर दिया, सिंपल ड्रॉप कर दिया। तो स्टूडेंट्स सिंपल ड्रॉप किया, ये रेस्ट में थी ये बॉल। तो इस समय जब मैंने इसको ड्रॉप किया तो ux कितना था इसका? x डायरेक्शन में, यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी? 0। वर्टिकल में भी कितनी थी? क्योंकि ये रेस्ट में थी ना। आ गई बात समझ में? इज दिस क्लियर? अब दूसरा केस, मैंने बॉल को ऐसे फेंका इस डायरेक्शन। इज दिस क्लियर? तो इसमें मैंने बॉल को ऐसे फेंका तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो है इसकी कुछ, लेकिन वर्टिकल कितनी है? 0। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, आपने एक बॉल फेंकी, सपोज इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है स्टूडेंट्स इसकी वर्टिकल वेलोसिटी है 0 और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कुछ भी मैं मान लेता हूं, सपोज लेट इट बी 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है? कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। तो हमारा क्वेश्चन है कि ये बॉल कितनी दूर जाकर गिरेगी? समझ गया?
ये x निकालना है हमें, कितनी दूर और कितने टाइम में गिरेगी नीचे। ओके, हाइट ऑफ द टावर सपोज हमें दे रखा है, लेट इट बी 40 मीटर्स, ये हाइट होगी इस टावर। ठीक है स्टूडेंट्स? यस Yes, sir. Yes, sir. अब आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, फोर्स इज इक्वल्स टू so students you have आपको एक बात का बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, स्टूडेंट्स नया कंसेप्ट है, आज तो पूरा नहीं होगा, इसी को कल भी प्रोसीड करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इट्स वी अभी तक आपने पढ़ा था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, क्या पढ़ा था? Motion in Motion. समझ रहे बात? और अब हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन से चल पड़े हैं मोशन इन ए प्लेन। किस में चल पड़े हैं? motion in a plane. Motion in a plane. प्लेन का मतलब है ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। आप प्लेन में बॉडी मूव करिए, ऐसे मूव कर सकते हैं, तो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं उसके। जैसे यहां बॉडी मूव कर रही है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और उसका वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो चेंज होगा, इट विल चेंज ड्यू टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और जो y कोऑर्डिनेट चेंज होगा वो किससे होगा? ड्यू टू Vertical velocity. Vertical. इन दोनों का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मेरी बात आप समझने की कोशिश कर रहे हैं? these two are different। तो इसीलिए इनका जो एक्सेलरेशन है ax और ay वो भी डिफरेंट है। तो सर ax और ay कैसे निकलेगा? ax और ay आएगा आपका फोर्स से, fx इज इक्वल्स टू f इज इक्वल्स टू मास इंटू ax, fy इज इक्वल्स टू m इंटू ay। तो दोनों का एक्सेलरेशन मतलब दो डिफरेंट मोशन है। मोशन इन ए प्लेन मींस यू आर स्टडिंग टू मोशंस, समझ रहे हैं? टू डिफरेंट मोशंस। क्या पढ़ रहे हैं आप मोशन इन ए प्लेन में? Different motions. Different motions. यानी कि दो इक्वेशंस ऑफ मोशन आएंगी जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। जैसे आप निकालते हैं फॉर्मूला s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो दो इक्वेशन आप बिल्कुल सेपरेट आएंगी। s इज इक्वल्स टू ux, आप x डायरेक्शन में डिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो ux इंटू टाइम प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, और जब आप वर्टिकल में निकालते हैं तो एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल दो डिफरेंट मोशन है। क्यों? क्योंकि ux और uy आपने देखा है दोनों अलग अलग जो है स्पीड है, दोनों डायरेक्शन में आपस में ये इंडिपेंडेंट है, यस और नो? और जो ax और ay है वो भी इंडिपेंडेंट है, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है fx और fy पे कि हॉरिजॉन्टली कोई फोर्स लग रही है ना, वर्टिकली कोई फोर्स लग रही है नहीं लग रही। तो इस फोर्स के कारण आता है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन के कारण आता है ये हमारा मोशन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड मोशन अलोंग द वाई एक्सिस। Okay, sir. तो दिस कंसेप्ट इज क्लियर। तो जब हम मोशन इन ए प्लेन करते हैं तो हम एक्चुअली एट दैट टाइम वी आर स्टडिंग टू डिफरेंट मोशंस, मोशन इन the horizontal direction due to horizontal force and motion in the vertical direction due to vertical force। बस स्टूडेंट्स ये बात आप समझ लो। तो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट जो है मोशन इन ए प्लेन, जो कि विच इज मतलब एक्चुअली में यही कंसेप्ट आपका बार बार रिपीट होना है, मोशन इन ए प्लेन। तो मोशन इन ए प्लेन का मतलब आप यू आर स्टडिंग पार्टिकल एक ही है, लेकिन उसके जो x कोऑर्डिनेट है, ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट।
तो एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट उसके चेंज हो रहे हैं। जब वो स्ट्रेट लाइन इधर मूव कर रहा है तो उसके सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था, जब वर्टिकली मूव कर रहा है तो सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। लेकिन जब वो सपोज एक्स वाई प्लेन में मूव करता है, स्पेशली लाइक आप जैसे यू हैव थ्रोन ए बॉल अपवर्ड, आपने एक बॉल फेंकी एक सपोज 45 डिग्री एंगल पे, तो बॉल जो है वो ऊपर जाएगी, ऐसे आएगी, एंड देन इट विल कम डाउन। तो दिस इज पैराबोला। और इसी का एक हिस्सा था कि यहाँ पे टॉप पे जो है वो वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई और फिर उसने यहां से तो स्टूडेंट्स हम जो कर रहे हैं क्या क्या सीख रहे हैं हमने डिस्कस किया था कि हम एक टावर पर खड़े हैं और हमने एक बॉल उस टावर से ड्रॉप कर दी। दूसरा केस, हमने एक बॉल ड्रॉप ना करके हमने उसको बॉल को हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया विद सम वेलोसिटी vx। यहां पर क्योंकि वर्टिकली रेस्ट में थी ये बॉल, तो इसलिए vy भी 0 था और vx तो है ही नहीं, दोनों के दोनों 0 थे। इस केस में vx तो था मेरा सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन जो vy था वो क्या है मेरा स्टूडेंट्स? 0। अब आपके पास ये दोनों अलग अलग मोशंस हैं, vx और vy दोनों का आपस में लेना देना नहीं है, लेकिन आपको पता है मोशन है तो एक्सेलरेशन का होना जरूरी है। अब आप मुझे ये बताओ कि इस केस में ay कितना है और ax कितना है? क्या कोई जब बॉडी एयर में है तो क्या उस पर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रही है? क्या कोई फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल? नहीं। जब कोई बॉडी एयर में है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ फोर्स कौन सी लगती है? वर्टिकल। कौन सी फोर्स लगती है? वर्टिकल। तो नोट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव टू नोट, बॉडी इन एयर, जब बॉडी एयर में है तो ओनली वर्टिकल फोर्स एक्ट्स। सिर्फ कौन सी फोर्स लगती है? वर्टिकल। उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या बोलते हैं उस वर्टिकल फोर्स को? स्टूडेंट्स ये बात समझ आ गई आपको? यस सर। तो अब ax कितना होगा? ax हमेशा क्या होगा जब बॉडी एयर में है? तो कोई fx इज इक्वल टू 0 इन एयर। यस जब fx 0 है तो f इज इक्वल टू m इंटू ax इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ax क्या हो गया? 0। तो जब भी बॉडी एयर में है तो ax क्या होगा? एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0। बस ये लाइफ में आपको हमेशा याद रखना, याद करना, याद हो, इसमें कॉमन मतलब जस्ट लॉजिकल बात है, क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फोर्स लग रही है एयर में तो उसमें जो एक्सेलरेशन कहां से आ जाएगी? यस, गॉट इट? यस सर। तो सो स्टूडेंट्स अब आपके पास ये दो मोशन है। ये आपने बॉल को सीधा रेस्ट में थी और आपने इसको ड्रॉप कर दिया, यू हैव ड्रॉप्ड ए बॉल, and in this case you have thrown the ball horizontally with speed 10 मीटर पर सेकेंड। आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये दोनों बॉल सेम टाइम पे हिट करेंगी या अलग अलग टाइम पे हिट करेंगे ग्राउंड? बस ये बताओ मुझे, टाइम इस बॉल का और इस बॉल का सेम होगा या अलग होगा? अलग टाइम होगा सर। ओके। क्या दोनों ने वर्टिकल डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया या डिफरेंट ट्रेवल किया है? डिफरेंट। वर्टिकल डिस्टेंस
this is height of the tower, this is also height of the tower h. दोनों टावर्स की सेम हाइट है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या दोनों ने सेम वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया है? Yes, sir. क्या दोनों की सेम वर्टिकल स्पीड थी? Yes, sir. Yes, sir. क्या दोनों का सेम वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा? डेट इज इसका भी g होगा। वर्टिकल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज। Yes, sir. जब आप मुझे ये बताओ कि v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, या ठीक है ना, या s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो ये फॉर्मूला देखते हैं। इस केस में s क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल दोनों में h है, सेम हो गया h, है ना। y की बात कर रहे हैं ना, y वर्टिकल डायरेक्शन में। यू वाई क्या हो गया दोनों केस में? 0। ए वाई क्या हो गया दोनों केस में? g। हाँ या ना? Yes, sir. तो टाइम सेम होगा या नहीं होगा? Same होगा। Yes. बिल्कुल बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा। यही चीज आपको लाइफ में बस ध्यान रखनी है कि x और y दो इंडिपेंडेंट मोशन है, दोनों इंडिपेंडेंट मोशन है, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। जब आप वर्टिकल डिस्टेंस की बात करो तो सिर्फ वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी को देखोगे। वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी इस केस में भी 0 थी और वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी इस केस में भी 0 थी। आगे बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. और मैंने आपको बताया दोनों इसी फॉर्मूले से निकलेंगे। एस वाई आपका h है, यू वाई 0 हो गया, ये टर्म खत्म हो गई। ए आपका क्या है? g। तो अगर ये 40 है तो 40 इज इक्वल सपोज, तो अगर ये h आपका 40 मीटर्स है तो आपका टाइम आएगा 40 इंटू हाफ इंटू एक्सेलरेशन आपको पता कितना होता है? 10। यस, अरे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को 10 ले लेते हैं ना हम। Yes, sir. तो ये टी स्क्वायर, तो ये 10 से बोथ साइड डिवाइड कर दिया, 2 उधर जाके वो ये हो जाएगा, तो टी इज इक्वल्स टू 2 अंडर द रूट 2। और रूट 2 क्या होता है? 1.4, तो ये कितना हो गया? 2.8 सेकेंड। तो दोनों की दोनों बॉल 2.8 सेकेंड में हिट करेंगी सेम टाइम स्टूडेंट्स, सेम टाइम। ये बॉल जब यहां पर 20 मीटर पे होगी तो ये भी वर्टिकल हाइट 20 मीटर पे होगी। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों मोशन सेपरेट है। हॉरिजॉन्टल मोशन इज ड्यू टू हॉरिजॉन्टल फोर्स एंड वर्टिकल मोशन इज ड्यू टू वर्टिकल फोर्स। आई बात समझ में या नहीं आई? Excuse me, sir. हाँ सर इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स कौन सी है? बेटे, एक बार हमने जो है इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 10 मीटर पर सेकेंड, उसके बाद जब वो बॉल एयर में है, लिखा हुआ है बॉडी इन एयर, तो सिर्फ उसके ऊपर वर्टिकल फोर्स लगती है, बस हॉरिजॉन्टल फोर्स 0 होती है। एक बार मैंने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाई और यहां फोर्स लगा के मैंने इसको कितने से फेंक दिया? इनिशियल वेलोसिटी थी मेरी 10 मीटर पर सेकेंड, बस। ओके ओके सर। अब आप मुझे ये बताओ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जब इसने इसको हिट किया तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी? सर एज इनिशियल वेलोसिटी। वेरी गुड, बिल्कुल वही थी जो इनिशियल वेलोसिटी थी। क्यों? जो इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, वही जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, वही मेरी जो वेलोसिटी है एक्स डायरेक्शन में जब इसने हिट किया तो वही है, सेम 10 ही है। क्यों? बिल्कुल सही आंसर है सर क्योंकि जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी उस टाइम पे। भाई v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो आप एक्स डायरेक्शन की बात करें तो वी एक्स यू एक्स ए टी ए एक्स इंटू टी, यस और नो? यस सर। तो आपका ए एक्स तो 0 है, ए एक्स क्या है? 0। तो ये टर्म खत्म हो गई ना। तो यस सर। तो वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स। ओके सर। आ गई बात समझ में?
और यही तो आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? द स्टेट ऑफ ए बॉडी विल नॉट चेंज अनलेस एंड अनटिल यू अप्लाई ए फोर्स ऑन इट। ये बॉडी जो है यहां 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तो ये 2 मीटर पर सेकंड से ही जाती रहेगी। समझ रहे हैं? अगर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही और ये रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी। और 2 मीटर पर सेकंड से जा रही है तो 2 मीटर पर सेकंड से ही जाती रहेगी। ये बात है स्पेस की। जब हम एयर की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चले जाते हैं तो स्पेस में आप किसी बॉल को 2 मीटर पर सेकंड से फेंकना और कोई फोर्स नहीं है उसके चारों तरफ, तो 2 मीटर पर सेकंड से जाती रहेगी हमेशा। एक बार आपने फेंक दिया 2 मीटर पर सेकंड, कोई फोर्स ही नहीं लग रही उसके ऊपर। जब फोर्स नहीं लग रही तो एक्सेलरेशन 0 हो गया। तो जो इनिशियल वेलोसिटी वही फाइनल वेलोसिटी। टाइम के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 हो गया तो टाइम को मल्टीप्लाई करेगा 0 हो गया, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो वो बॉल उसी से चलती रहेगी। तो इसीलिए आपका स्पेसशिप है और आपके स्पेसशिप ने स्पीड पकड़ ली 1 लाख किलोमीटर पर आवर। तो 1 लाख तो बहुत ज्यादा हो गया, मान लो 10,000 किलोमीटर पर आवर। तो आपका स्पेसशिप 10,000 किलोमीटर पर आवर से चलता रहेगा सेम डायरेक्शन में। इंजन बेशक बंद कर दो उसके। आगे बात समझ में? तो यही तो है न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ यही तो है। जब आप फोर्स लगाओगे तो उससे एक्सेलरेशन होगा और बॉडी की स्पीड चेंज होगी। अगर आपने फोर्स नहीं लगाई तो बॉडी की जो स्पीड है वो वही रहेगी। आगे बात समझ में? यस सर। यस सर। यस सर। तो चलो अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस चलते हैं, देखते हैं हम कितना अब समझ पाए हैं कंसेप्ट को। ये तो हमारी समझ में आ गया कि ये टावर है और टावर से हमने एक बॉल हमने अपवर्ड फेंकी और वो बॉल वापस नीचे आ गई। इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u। दूसरी बॉल हमने इनिशियल वेलोसिटी से नीचे फेंकी, यानी कि इसमें जब बॉडी ऊपर गई, ऊपर जाके फिर नीचे आई, तो नीचे जब आई मैंने आपको बताया था वही सेम उस पर सेम वेलोसिटी होगी। यानी कि आपने इसको u से ऊपर फेंका तो जब ये यहां से नीचे जाएगी तो ये u से ही नीचे जाएगी। यस, वी हैव डिस्कस दिस थिंग अर्लियर आल्सो। यस सर। यस सर। और इसको भी मैंने u से फेंका है। तो ये जो दोनों बॉल हैं, ऑफ कोर्स इस बॉल का टाइम कम होगा और इस बॉल का टाइम, ये बॉल मेरी जो अपवर्ड फेंकी मैंने वो क्या थी? a। यस सर। a इज अपवर्ड, b जो है वो मेरी डाउनवर्ड थी। विद तो इसमें भी uy है और इसमें भी uy है, दोनों में uy है। ठीक है, तभी तो ऊपर गई है, uy है। ठीक है ना। और जो तीसरी बॉल मैंने फेंकी c, वो किस डायरेक्शन में थी? हॉरिजॉन्टल। और जो c केस है इसमें uy कितना था? 0। यस और नो? यस सर। अब आप मुझे बताओ, ये va है, ये vb है और ये आपकी आई vc। तो इसमें से किसकी वेलोसिटी सेम होगी? भाई ये ऊपर गई तो ये जब वापस टावर की हाइट पे आई तो नीचे तो इसकी सेम वेलोसिटी से नीचे आएगी ना। तो v और vb इक्वल होंगे या नहीं होंगे? तीनों की नहीं, लेकिन इसमें तो uy 0 है जब मैंने उसको नीचे फेंका। इसमें तो भाई इसमें तो ये uy मान लो 10 मीटर पर सेकंड है सपोज। इस केस में भी 10 मीटर पर सेकंड है, लेकिन इस केस में तो uy 0 है। तो ये सेम वेलोसिटी से कैसे आ सकती है? v इज इक्वल टू u प्लस at। एक्सेलरेशन तीनों का सेम है क्योंकि तीनों एयर में है, तो तीनों पे सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो ay तीनों का सेम है, डेट इज 10। बिल्कुल ठीक है। लेकिन u तो इन दोनों का तो u सेम है, लेकिन इसका तो u डिफरेंट है जो c बॉल है। c में तो u क्या हो गया? 0। तो इसीलिए
सी की वेलोसिटी कम होगी या नहीं होगी ए और बी से? सर होगी। ए केस में वर्टिकल वेलोसिटी है 10, बी में भी 10, लेकिन सी में तो वर्टिकल 0 है, क्योंकि हो Yes, sir. आगे बात समझ में नहीं आई? बिकॉज वी Yes, वाई sir. इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी। तो वाई डायरेक्शन में एक में तो आप यहाँ 10 ऐड कर देते हो, ए और टी तो दोनों में सेम है, ए और टी तो इन तीनों में सेम है। टाइम जो है, जितना टाइम इसको लगा उतना ही टाइम इसको कम लगेगा, ज्यादा लगेगा? चलो पहले तो ये देखो कि ये 10-10 है दोनों की स्पीड, तो आप 10 ऐड कर रहे हो, और दूसरी तरफ सी केस में आप इस 10 को बिल्कुल ही हटा रहे हो, क्योंकि यू वाई क्या है 0। तो सेम वेलोसिटी कैसे हो सकते हैं तीनों की? हाँ या ना? Yes, sir. सर यस सर। तो वी ए और वी बी की इक्वल होगी, और वो वेलोसिटी वी सी से ज्यादा होगी। हाँ या ना? यस सर। सोच कर देखो। चलो कैलकुलेट करें वेलोसिटीज कितनी होंगी, यस सर। तो हमें थोड़ा सा पता लगेगा। चलिए, ये बॉल मैंने फेंकी। चलो तीनों केस डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। ये आपको, यू विल लर्न a lot from this case study today. So we have thrown a ball vertically upwards. Okay, this ball A. अब ये बॉल ऊपर गई, और ये है H, टावर ऑफ द हाइट। तो ये बॉल ऊपर जाएगी, और ऊपर जाने के बाद ये बॉल नीचे आएगी। क्लियर? यस। तो आप मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स, यहां से यहां जो आपका मोशन हुआ, ठीक है, मैंने बताया था मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या लेना? पॉजिटिव। क्या लेना? Positive. यानी अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो डाउनवर्ड क्या आ जाएगी आपकी? नेगेटिव। अब जितने भी वेक्टर्स हैं उनको आप पॉजिटिव नेगेटिव में डिवाइड कर लो। आपका फॉर्मूला है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा? एस जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं? एस वाई इज इक्वल्स टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वाई इंटू टी स्क्वायर। वाई एक्सिस पे बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस तो है ही नहीं इसमें, तो चाहे आप ये वाई लिख लिया आपने। अब एस वाई किसके इक्वल हो गया आपका? मुझे बताओ, जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल होगी? बताओ चलो। डिस्प्लेसमेंट क्या हुई? यहां से ये ग्राउंड पे आया मैं, तो यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट कितनी है स्टूडेंट्स? सर फिर से पूछ बताना, कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक? यहां से यहां। सर जितनी हाइट होगी। हाँ, तो ये प्लस एच होगी या माइनस एच? Minus. माइनस। माइनस एच, बिल्कुल माइनस एच होगी। ठीक है, चलिए, क्योंकि यहां से मैं नीचे डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं, तो अगर मैं इस ए पॉइंट से अगर मैं ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूं तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ मूव कर रहा हूं तो नेगेटिव। Negative. चलिए, अब यू बताइए मुझे, पॉजिटिव है या नेगेटिव है यू वाई? बॉल सर आपने पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि बॉल आपने ऊपर की तरफ थ्रो की है। बिल्कुल सर ठीक है या नहीं? यस सर ठीक है। प्लस, अब ए इंटू, ये बताइए मुझे, ए वाई पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? ए वाई किसके इक्वल होगा? नेगेटिव। क्योंकि वो ए वाई हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, हमेशा। तो वो क्या हो जाएगा? माइनस जी। क्या हो जाएगा? माइनस Minus G. इंटू टी स्क्वायर। ओके,
यस सर, ओके यस सर। तो यहां से आपका हमें निकालना था फाइनल वेलोसिटी, तो ये तो एक इक्वेशन आ गई। अगर हम ये इक्वेशन यूज करते हैं, हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी, तो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल्स टू u प्लस AT। तो स्टूडेंट्स यहां से आपको ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है, यहां से आप टाइम निकालेंगे, उस टाइम को निकाल के यहां पुट करेंगे एक्चुअली, तो आपको फाइनल वेलोसिटी पता लगेगी। दूसरा तरीका, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2g s। हाँ या ना, तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन। यस सर। इस केस में आपको टाइम की जरूरत है, इस केस में नहीं है ना। नो नो सर। तो इसीलिए यहां से अगर आपको टाइम दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इसको आप फॉर्मूला नंबर 1 बोल लो, इसको 2 बोल लो। तो फॉर्मूला नंबर 1 जब टाइम दिया, फॉर्मूला नंबर 3 जब टाइम नहीं दिया हो, तो इसके में टाइम तो है नहीं आपके पास, तो नहीं तो यहां से टाइम निकालोगे, यहां पुट करो, तो डायरेक्ट इससे कैसे निकालेंगे, v निकालना आपको माइनस ये जो है आपकी ये y, ये भी y, सब y डायरेक्शन में करे ना सब, ये सब जो g है दैट इज 2as, सॉरी as है ना फॉर्मूला आपका, तो AY/SY, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स VY आपको निकालनी है, तो UY पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, हम कुछ वैल्यूज रख लेते हैं। मान लो UY हो गई आपकी 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, जिससे बॉल आपने ऊपर थ्रो की, ओके, और हाइट हो गई 40 मीटर। चलिए कुछ वैल्यूज ले लेते हैं तो समझ आएगा आपको अच्छे से। बिना वैल्यू के भी निकाल सकते हैं, वैल्यू लेके भी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। चलिए पहले बिना वैल्यू के कर लो, VY स्क्वायर माइनस, अब UY बताओ मुझे पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो इसलिए आपको कंफ्यूजन ना होना, आप यहां से y हटा दो पहले। अब हम इनको सबको y के उसमें लिख रहे हैं, ठीक है। तो बताओ ये u क्या होगा, ऊपर फेंकी है बॉल आपने, पॉजिटिव या नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऊपर फेंकी है, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो प्लस u होगा आपका, इंटू 2 इंटू a क्या होगा स्टूडेंट्स, नेगेटिव नेगेटिव, माइनस g, और s क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिव। नेगेटिव, माइनस h। बिल्कुल ठीक आ गया, यस। यस सर तो आपकी जो वेलोसिटी आई जिससे वो हिट करेगा, डेट इज इक्वल टू ये माइनस यूज कर जाके आ जाएगा प्लस, यस और नो। यस सर तो यूज करो, ये माइनस माइनस से क्या आ जाएगा प्लस, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, और v इज इक्वल टू अंडर द रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh स्टूडेंट्स। तो ये आ गई आपकी वेलोसिटी, ठीक है, इस केस में, ओके। ओके सर अब बी केस में आपकी वेलोसिटी क्या आएगी, बी केस में आपने बॉल को सीधा वर्टिकली थ्रो किया है विद यू, ठीक है। चलिए अब आप मुझे ये बताइए, जो वी आई आपकी ये किस डायरेक्शन में है, इसका साइन क्या आगे, प्लस, समझ में आ गई बात। यस सर। तो ये क्या हो गया, डाउनवर्ड, ये वेलोसिटी आ गई आपकी। अब इस केस में निकालते हैं कितनी आएगी स्टूडेंट्स, इसमें मोशन किस में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव माइनस नहीं नहीं नहीं, जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो हमेशा पॉजिटिव है। ओके सर यहां मोशन की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो इसका मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो गई, पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव हाँ। अब वही फार्मूला आपका, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो स्टूडेंट्स आपका ये आपकी हाइट थी h, तो वी स्क्वायर माइनस यू क्या हो गया इस केस में, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव है u इस केस में,
इज इक्वल्स टू 2 इंटू जी। क्या हो गया इस केस में? एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका? पॉजिटिव। यस, जी इज ऑलवेज डाउनवर्ड। इस केस में क्योंकि आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन, मोशन डायरेक्शन, सीधा आपने बॉल को नीचे फेंका तो मोशन नीचे स्टार्ट हुआ, तो नीचे डायरेक्शन पॉजिटिव थी आपकी, तो जी इस केस में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इस डायरेक्शन में? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्योंकि बॉल, समझ में आई बात? क्योंकि आपने डायरेक्शन डाउनवर्ड क्या इस बार आपकी, क्योंकि मोशन सीधा डाउनवर्ड है, तो ये भी क्या हो जाएगी? प्लस एच। तो वी स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका? ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो स्टूडेंट देखो, दोनों केसेस में आपकी जो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी यू स्क्वायर प्लस 2gh है, और क्या डायरेक्शन है इसमें? पॉजिटिव। पॉजिटिव। स्टूडेंट्स इस केस में जो u है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्वायर है, तो ये जो डायरेक्शन है इसमें एक्चुअली यहाँ जब ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होंगे, लेकिन हमें पता है कि ये डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड, नेगेटिव, तो हम इसमें नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे। समझ में आई? जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज 4 है, तो x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? प्लस माइनस अंडर द रूट 4, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो यहाँ पे x या प्लस 2 लिखोगे तो भी LHS RHS इक्वल हो जाएंगे, माइनस 2 लिखोगे तो भी 4 ही होगा, LHS RHS इक्वल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे दो, इसीलिए प्लस माइनस दोनों आएंगे, लेकिन हम इसमें इसको जो हिट कर रहा है, हमारे काम का आंसर सिर्फ क्या है? नेगेटिव। तो इसीलिए v इज इक्वल टू, इस केस में क्या है? माइनस अंडर द रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये बात आप समझ रहे हैं? ये नेगेटिव क्यों? क्योंकि इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने नेगेटिव ली थी। इज दिस क्लियर? और इस केस में हम पॉजिटिव लेंगे, इस केस में क्या लेंगे? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इस केस में जो डाउनवर्ड डायरेक्शन हमने क्या लिया है? पॉजिटिव। तो इसमें भी इसमें नेगेटिव का मतलब क्या था? डाउनवर्ड। तो इसमें भी आंसर क्या है आपका? यू स्क्वायर प्लस 2gh डाउनवर्ड्स। अब आप डायरेक्शन को लिख लो, नेगेटिव का मतलब इसमें डाउनवर्ड था, और इसमें पॉजिटिव का मतलब डाउनवर्ड था, तो अंडर द रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh डाउनवर्ड्स। तो दोनों में ही सेम। नेगेटिव होगा और अपवर्ड होगा तो पॉजिटिव। बेटा आपने डायरेक्शन क्या माननी है उस पर डिपेंड करता है, और सारी कहानी शुरू होती है आपका मोशन किस डायरेक्शन में। यहाँ पे हमने बॉल को ऊपर फेंका था, तो इसलिए अपवर्ड डायरेक्शन, मोशन डायरेक्शन अपवर्ड थी, इनिशियल मोशन डायरेक्शन, इसलिए हमने उसको पॉजिटिव ले लिया था। और जब बॉडी वापस आके हिट कर रही है ग्राउंड को, तो हमारे आंसर मैथमेटिकल दो आते हैं, लेकिन दो में से कौन सा आंसर सेंस मेक सेंस? वो क्या है? डाउनवर्ड, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव है, तो नीचे हिट करो। तो इसलिए हमने इसको नेगेटिव ले लिया था, तो नेगेटिव मींस डाउनवर्ड, ये वेलोसिटी डाउनवर्ड इतनी फाइनल वेलोसिटी है। और यहाँ पर जो है हम, तो इस झगड़े को खत्म करने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। क्या तरीका होता है इसको खत्म करना? वेलोसिटी क्या ले लें हम? मैग्नीट्यूड। क्या ले लें? मैग्नीट्यूड। हाँ, तो ये वेक्टर था हमारा, इसके ऊपर ये वेक्टर साइन, ये ऐसे ऐसे हम वेक्टर बनाते हैं, और इस वेक्टर का वेलोसिटी वेक्टर हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। मैग्नीट्यूड इज यू स्क्वायर प्लस 2gh। तो दोनों ही केस में तो डायरेक्शन हम खत्म कर सकते हैं। अब हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, तो मैग्नीट्यूड कैसे लिख सकते हैं? अंडर द रूट, तो ये यहाँ प्लस साइन था, यहाँ माइनस साइन था, तो इसको हमने माइनस साइन क्या लिख दिया? डाउनवर्ड। यहाँ प्लस साइन है, तो उसके हमने यहाँ प्लस साइन था, उसके क्या लिख दिया? डाउनवर्ड, क्योंकि इसमें डाउनवर्ड साइन, हमने इसको डाउनवर्ड को पॉजिटिव माना था। इसमें बॉल अपवर्ड जा रही थी, तो उसको अपवर्ड को पॉजिटिव माना था, तो डाउनवर्ड क्या हो गया था हमारा? नेगेटिव। तो इसलिए हमने माइनस साइन लिया, बट द आंसर इज सेम। वेलोसिटी इज दिस मच डाउनवर्ड, हियर आल्सो वेलोसिटी इज दिस मच डाउनवर्ड। ओके स्टूडेंट्स, अब सी केस में बताना मुझे वेलोसिटी कितनी आएगी। जो सी केस है आपका, उसमें हमने उसको बॉल को ऐसे थ्रो किया है, ओके। तो इस केस में यू वाई कितना है? 0। यू वाई कितना है? 0।
यू एक्स तो है कुछ, मान लो 10 है, लेकिन यू वाई तो 0 है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहां आपकी मर्जी है, लेकिन यहां भी मोशन कहां, बॉल कहां आएगी, नीचे। डाउनवर्ड। तो इसलिए इसमें भी आप डाउनवर्ड को क्या मान लो, पॉजिटिव। तो अपवर्ड क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अब आप बताओ वी स्क्वायर आपको निकालना है, यू वाई कितना है, 0 है। तो ये तो 0 हो गया। एंड 2 और ये प्लस डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा आपका, जी क्या हो जाएगा, प्लस। और एच क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो आपका आंसर क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh एंड v इज इक्वल टू, फिर से आपके पास 2 आएंगे आंसर, लेकिन आपको कौन सा इसमें कौन सा सिग्निफिकेंट है, नेगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो डेट इज 2gh, और पॉजिटिव का मतलब क्या है, अंडर द रूट 2gh डाउनवर्ड्स। तो स्टूडेंट्स लास्ट में आप आंसर देखो, अब इन तीनों में से ए के केस में आपका आंसर आया, ए और बी के केस में अंडर द रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh, और इसमें आया अंडर द रूट 2gh। और स्टूडेंट जो ये यू स्क्वायर है, आपको पता है स्क्वायर ऑफ एनी नंबर इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। तो आप 2gh में एक पॉजिटिव क्वांटिटी ऐड कर रहे हो, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा होगा, ये था ए एंड बी का केस, और ये था सी का केस। तो ए और बी तो सेम थे दोनों आपकी मैग्नीट्यूड, समझ रहे हैं। लेकिन ये क्या हो गया, वीसी कम हो गया ना, वीसी क्या हो गया आपका, कम। लेसर। तो स्टूडेंट्स ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपको, यस सर। स्टूडेंट्स ये आइडियाज आपके लिए नए हैं, बहुत नए हैं। मोशन की हमने बात की, उसके बाद इस तरीके से हमने वर्टिकल, ये सिर्फ वर्टिकल मोशन की बात की। हम इस आइडिया को कल फिर डिस्कस करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। ओके, आप इस वीडियो को, मेरी रिकमेंडेशन है आप ये नोट्स बनाएं, इसको एक बार लिखें, इस वीडियो को देखें, ठीक है। और ज़रूरत पड़े तो कल सुबह एक बार और देखें मेरी क्लास शुरू होने से पहले, ठीक है। कितने बजे ओके सर। कल मेरी क्लास मॉर्निंग में, लेट अस सी अराउंड, आप कितने बजे चाहते हैं क्लास मॉर्निंग में, सर 9 o'clock। 9। चलो